Hello friends, today we will know about one of the important examination that most of the students from mechanical, production, automobile background are seeking. Generally government opportunities are providing an attractive option for the technical graduates. And if we consider about the mechanical, automobile or a production background students, they are having so many opportunities in government sector. In this video today, we will understand about the complete guide for the important one of the important exam, that is AMVI. So basically, it is conducted for the regional transport office, and the post that the student who is able to crack this exam is going to have or is going to be an AMVI, that is an assisted motor vehicle inspector. As I told, it will be under the regional transport office or regional transport authority, that is specifically known as RTO. It is regarding the RTO that is coming under the Maharashtra government. So in this video, we'll understand entire syllabus of this RTO exam and scheme of that particular exam. So how marking scheme is there. That information we will understand today. Now, this AMVI, as told earlier, this AMVI stands for Assistant Motor Vehicle Inspector. So this is going to be the post once you will selected through this particular exam. And in this upcoming slides, we will understand what are going to be the sections for the men's paper of the AMVI, how the marking scheme is allotted, and the syllabus for the AMVI exam. So now, if we see the notification for the AMVI, the link for the notification is also given in the description. You can go through that. This AMVI is conducted under the Maharashtra Public Service Commission. Already, the MPSC has published the notification for the AMVI. It is a class 3 job, and the vacancies will be under the regional transport office. And as we known about that, the students who are from the mechanical, automobile and production disciplines, they are eligible for this particular job. अभी इसमें देखेंगे कि इस बार की जो नोटिफिकेशन है, तो उसमें अराउंड 240 वैकेंसीज डिस्क्लोज की गई है. So generally, whenever these vacancies are disclosed in a notification, these are liable to change. But around it is going to be the 240 vacancies. So इसमें आप you can understand the gravity of the number of vacancies, and you can. I am going to deal with some of the part of the AMVI syllabus. My name is Avinash Mote, and I am MTech from NIT Bhopal, and I am having the teaching experience of 6 years. I have guided so many students for the various competitive exams along with this AMPI, then Indian Engineering Services, Staff Selection Commissions, the exams coming under the SSC, then RRB, GATE exams. Now, if we see the syllabus of the AMVI, और if we see the structure of the AMY, इसमें देखेंगे कि basically जो मेंस का पेपर है, तो मेंस के पेपर में there are three sections: section A, section B and section C. And as you know about the basic structure of the exam, so prelim is of 100 marks. तो prelim का जो exam है वो 100 marks का होगा, और जो मेंस का exam है वो 300 marks का होगा. In this mains exam, there are three sections: section A, B, C, and whatever the syllabus you have learned in your undergraduate course, that is in your PE or BTech, that is divided in these three categories. इसमें जो section A, section B and section C है, उसमें section A which is for 240 marks, और उसमें 120 questions है. So it is basically from mechanical and automobile engineering background.
and this is a compulsory section, so you will have to attempt it compulsorily. और जब दो sections है बचे हुए, section B और section C, so you can opt out for the one section. So both the B and C sections are for the 60 marks. So total अगर consider करेंगे तो this paper will be for 300 marks और उसमें 150 questions होंगे. Okay, so one question will carry 2 marks. So and that 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 90 मिनट्स में. और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड. यस, ऑब्वियसली मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, एंड बीइंग एन ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चंस. सो इसका मतलब ये है कि आप अगर आंसर के क्लोज भी होंगे, then again you can predict the answer, so you need not to go for the exact answer. जो जिस भी एग्जाम में कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, so in that time you should in that case you must be exact with the answer, you should know a correct answer. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. We know the strategy for the objective that if we are close to the answer you can get the correct options. Okay, so ultimately इसमें आपको दो ही सेक्शन इवेलुएट करने हैं. तो उसमें जो है सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 240 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. और सेक्शन बी और सेक्शन सी इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्रिएट किया गया है. So out of that you will have to select one which is having the 30 questions and will be asked for the 60 marks. So total 150 questions रहेंगे और total marks होंगे 300 marks. So this is going to be the scheme of the particular mains exam AMBI. अब अगर अपन सिलेबस डिटेल में देखेंगे तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन फर्स्ट है, विच इज हैविंग 120 क्वेश्चंस और 240 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. तो बेसिकली इट इज फ्रॉम द मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो जो भी स्टूडेंट्स है दोज हु आर फ्रॉम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन बैकग्राउंड, so if the student is from the mechanical background, तो उस particular student ने कैंडिडेट ने he must have passed through the particular automobile engineering part, because अगर आप सिलेबस देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर का पार्ट कहीं ना कहीं होगा. और अगर कैंडिडेट इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो उसमें मैकेनिकल का भी बेसिक पार्ट रहेगा. तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं कि वी आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, हाउ वी कैन गो फॉर द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्शन. सो इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड इट इज अ ऑफ द बेसिक लेवल. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एडवांस लेवल. सो जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, जिसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 240 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. So in this strength of materials, अगर आप इसका syllabus देखेंगे कि there are very less number of topics and these topics mostly you have covered in your some part in your first year and some part in your second year. So जो second year तक का part हुआ है उतना ही strength of materials के अंदर है. जैसे कि stress strain है जो भी first year में हुआ है और second year में भी उसका syllabus आपने देखा होगा. तो stress strain ये जो basic concept है उसके dependent strain energy, shearing force, bending moment, maybe you have studied the bending moment diagram, shear force diagram, so उसके according questions होंगे. slope and deflections के ऊपर क्वेश्चन होंगे, principal planes and strategies के ऊपर क्वेश्चन होंगे, torsions and thin cylinders. So the questions are going to be obviously a multi objective type questions or the multiple choice questions. But syllabus जो है वो only basic syllabus है, इसमें advanced syllabus कहीं नहीं है. So you can try the questions and the questions are very easy. उसमें second part आता है mechanical technology. मैकेनिकल टेक्नोलॉजी तो बेसिकली इसको अगर आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें मोस्टली द एरिया इफ यू सी द सिलेबस इट इज आल्सो फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ द प्रोडक्शन. सो इसमें बेसिक रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इट्स इफेक्ट्स ऑफ द मटेरियल्स व्हेन इट इज हैविंग इन अ कंडीशन ऑफ द अलॉइंग. सो ये पार्ट रहेगा. चिप फॉर्मिंग प्रोसेसेस, नॉन चिप फॉर्मिंग प्रोसेसेस, जो भी है प्रोडक्शन प्रोसेसेस, तो उसके ऊपर सम क्वेश्चंस होंगे. टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, फिनिशिंग, ये जो भी ऑपरेशंस है, तो ये ऑपरेशंस आपने प्रैक्टिकली भी देखे हैं और थ्योरेटिकली भी देखे हैं. तो मोस्टली यू हैव स्टडीड ओनली थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेसेस. तो क्वेश्चंस आंसर करना भी इजी रहेगा, बस आपको उसका प्रोसेस पता होगा और सम उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पता होगा तो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड सम पार्ट ऑफ एनसी एंड सीएनसी मशीन्स एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स. सो इसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा
प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, चिप फॉर्मिंग प्रोसेसेस, नॉन चिप फॉर्मिंग प्रोसेसेस, और जो भी प्रोसेसेस सीएनसी और एनसी पे कंसिडर की जाते हैं, और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। ओके, थर्ड नेक्स्ट पार्ट आता है कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का, जो कि डिजाइन के अंडर आता है। तो इट इज जस्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड ये पार्ट आपने मोस्टली थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में कवर किया होगा। तो इसमें भी सब बेसिक बेसिक है, जैसे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ऑफ द मशीन्स, रोल ऑफ फ्रिक्शन, डिफरेंट पावर डिवाइसेस एंड पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, जैसे कि गवर्नर है, गायरोस्कोप है, एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैम्स। सो दिस इज आल्सो अ बेसिक एंड वेरी सिंपल पार्ट। नेक्स्ट है जो हाइड्रोलिक्स क्या आता है। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लर्नड इन इट इज इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, और some of the universities will have this subject as a separate subject। तो इसमें बेसिक फ्लूइड्स का जो पार्ट है, जैसे कि फ्लूइड्स है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लो है, जैसे लैमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, और उसमें जो बर्नौलीज इक्वेशन आता है, व्हिच इज वेरी फेमस इक्वेशन इन द हाइड्रोलिक्स। तो अगर बेसिक इक्वेशंस पे रहेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना वेरी वेरी इजी होगा। फ्लूइड प्रेशर है, पास्कल लॉ है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, और फ्लूइड फ्लो और इट्स मेजरमेंट। ओके, तो इसमें थोड़े से आपने जब भी उसका स्टडी किया होगा तो उसमें आपने डेरिवेशन डिराइव किए होंगे, लेकिन वो वाला डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अगर इफ यू नो जस्ट ओनली अबाउट दी फाइनल इक्वेशंस, तो उसके उसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। अगर आपको फाइनल इक्वेशंस भी पता होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है थर्मल बैकग्राउंड से। तो इस थर्मल बैकग्राउंड में भी और थर्मल इंजीनियरिंग में इसमें भी सब बेसिक पार्ट है। इट इज हैविंग ओनली बेसिक पार्ट, दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है। थर्मोडायनामिक्स के लॉ है, जो आपने थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली स्टडी किए होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। और प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग्स ऑफ हीट इंजन्स है, एयर कंप्रेसर से, एयर स्टैंडर्ड, वेपर पावर साइकिल एंड गैस पावर साइकिल। ओके, तो इसमें जो भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि पैरामीटर्स है, इफिशिएंसी निकालना है, इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करना है, ये सब पैरामीटर जो है, थोड़ा थोड़ा सा अगर बेसिक भी आपको अंडरस्टैंड रहेगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। और नेक्स्ट पार्ट है जो ऑटोमोबाइल इंजन से है। तो ऑटोमोबाइल इंजन में जो भी बेसिक पैरामीटर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन का थ्योरी है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स है, और जैसे सीआई और एसआई इंजन के जो बेसिक्स है, कंबशन फेनोमेनन्स है, फ्यूल्स लुब्रिकेंट्स, ओके, आईसी इंजन्स, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, डायोड्स, यूजेटी, बीजेटी, एम्पलीफायर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, जो कि थोड़ा सा एडवांस पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजन का। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे तो यू हैव स्टडीड एंटायर दिस पार्ट इन वन सब्जेक्ट ओनली, और इसमें रहेगा कि अगर आपके दो तीन चैप्टर का ही सिलेबस बस रखा गया है। तो दिस इज ओनली द बेसिक पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें कहीं भी एडवांस्ड पार्ट इंक्लूड नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसमें आता है हाइड्रोलिक मशीनरी। ऑब्वियसली ये ऑप्शनल पार्ट है, क्योंकि जैसे बताया गया है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में से आपको एक सेक्शन चूज करना है, और उसके डिपेंडिंग आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है हाइड्रोलिक मशीनरी का, जो कि पिछले सेक्शन में आपने हाइड्रोलिक्स देखा था, उसी के डिपेंडेंट ये हो गया उसका एप्लीकेशन, दैट इज हाइड्रोलिक मशीनरी। तो उसमें इम्पैक्ट ऑफ जेट है, जेट के जो भी इक्वेशंस है, हाइड्रोलिक टर्बाइंस है, हाइड्रोलिक पंप्स है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग एंड अदर टाइप्स, एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट्स। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। तो दिस इज अ एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, सो आपका थर्मल का जो बेसिक है वो मैकेनिकल में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के डिपेंडेंट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के पार्ट है। तो अगर आपका थर्मल का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ही इजी है। इट इज अ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसे कि रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप है, वेपर कंप्रेशन एंड वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेंट, साइकोमेट्री, एयर कंडीशनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इसके लिए थोड़ा सा बस बेसिक जो है थर्मल इंजीनियरिंग का वो ब्रश अप करना पड़ेगा। इफ यू अंडरस्टैंड दैट बेसिक्स, इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम आरएसी कैटेगरी। एंड लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जिसमें इट इज अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्लांट्स लेआउट है, प्रोसेस प्लानिंग है, वर्क स्टडी है, एसक्यूसी है जो कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, और सम पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। अब कई यूनिवर्सिटी में ये जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है वो डिफरेंट है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट डिफरेंट है। maybe sometimes you have gone through the separate subject as a metrology engineering, and sometimes it is a industrial engineering.
तो जो भी बेसिक बेसिक पार्ट है मेट्रोलॉजी का और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, बस वही बेसिक पार्ट इसमें कंसिडर किया है। और मोस्टली पार्ट तो थ्योरेटिकल ही है, जैसे कि प्लांट लेआउट हो गया, प्रोसेस प्लानिंग हो गया। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूलाज और ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है सेक्शन सी का, जो कि अभी भी ऑप्शनल है, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी में से आपको एक सेक्शन चूज करना है और सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा। इसमें भी 30 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स रहेंगे। तो ये बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेस्ड होगा और पिछला वाला जो सेक्शन बी था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड होगा। तो ये स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियर के ऊपर होगा, जैसे कि उसमें फर्स्ट पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो इसमें थोड़ा सा डीप रहेगा, जैसे व्हीकल लेआउट है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, एबीएस है, स्टीयरिंग सिस्टम है, चैसिस फ्रेम बॉडी इंजीनियरिंग। ओके, सो व्हाट एवर द पार्ट रहेंगे ऑटोमोबाइल के, सो दैट पार्ट, एंड इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा। बस उसमें आपको डिटेल्स में पूरा पढ़ना पड़ेगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। नेक्स्ट पार्ट आता है व्हीकल मेंटेनेंस का, जो भी स्पेसिफिकली है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ही लिंक्ड है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल, इंजन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्कशॉप लेआउट, रिपेयरिंग, इमिशन मेजरमेंट्स एंड कंट्रोल टेक्निक्स। ओके, सो दिस पार्ट विल बी अंडर द व्हीकल मेंटेनेंस। और लास्ट पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा लिंक्ड है उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स ऑपरेशन, मोटर व्हीकल एक्ट एंड टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस। ओके, सो ये जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली आल्सो आपने देखा होगा कि जैसे भी whenever we are purchasing a new vehicle etc, that time also you have came across this particular part, motor vehicle act है, जो टैक्सेशन है, वो इंश्योरेंस है। तो कहीं ना कहीं आपका उसका इंटरफेस ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट यू विल हैव टू स्टडी इट फॉर द एग्जाम पर्पस, उतना ही डिफरेंस। नाउ अगर अपन नेक्स्ट सीरीज जो है वीडियो सीरीज, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड इन दिस वे। तो नेक्स्ट सितंबर 2020 में वी आर हैविंग द वीडियो लेक्चर्स ऑन द AMVI मेंस सिलेबस। और उसके अगले मंथ में अक्टूबर में we will solve some previous year question papers, so that you will understand the gravity of the questions, how to answer the questions in a shortest possible time। उस टाइम अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड कैसे स्टडी करना है, जिसको अपन कहते हैं कि CTQ, द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। ओके, सो उस पे अपन, सो वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। And at the end November 2020 में we'll have mock test, so we have planned around 60 mock tests, so you will have a thorough practice over this entire part। पहले आपको उसका वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद में वी आर गोइंग टू सॉल्व द ओल्ड क्वेश्चंस पेपर। उसमें आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और किस तरह उसे सॉल्व करने हैं। और नवंबर में we are going to conduct the 60 mock tests। तो 60 mock tests में you will have a thorough preparation on the choices given। So इसके ये 3 पार्ट रहे। नेक्स्ट जो है व्हाट आई एम गोइंग टू डील विद, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डील विद some part from section A and some part from section B or C। So section A में I am going to deal with the strength of materials, which is a very very important। और इसके अगर कंसेप्ट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कंसेप्ट कंक्रीट हो जाएंगे, तो based on that you can answer the questions for the theory of machines also। सेकेंड पार्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जो कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल है और समटाइम्स यू विल हैव द न्यू प्रॉब्लम्स आल्सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। एंड द लास्ट है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। सो आई एम गोइंग टू डील विद दिस 3 पार्ट इन द lectures। So we will have this type of plan, you will get each and every knowledge thoroughly। You can go through the all the videos that we are going to upload soon to know more about the videos, the upcoming lectures, and to upcoming the test and how we are going to move ahead। Just like our Facebook page, share it for your friends so that they can also have advantage of it। You can subscribe our YouTube channel, the description for which I have given in a description, so you can subscribe that and you will get a notification for all the videos, and click the bell icon so that you will get the notification whenever we will upload the video lectures on the AMVI। So thank you so much guys, soon we will start with our module in the next upcoming videos। Thank you so much।